نئے سفر پر خوش آمدید محترم ناظرین۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی داستان لے کر آئے ہیں جو رشتوں کے دھندلے پہلوؤں، جذبوں کی پیچیدگی اور ایک ایسی رات کے گرد گھومتی ہے جس نے ایک نوجوان کی زندگی کی داستان ہی بدل ڈالی۔ یہ کہانی محبت، فریب اور اندھیرے میں کھو جانے والی راہوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو ایسی پرجوش اور دلوں کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ میں نے اپنی ساس کو پہلی بار شادی کے بعد دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کے تصورات اور سوچ میں ایک عجیب سی وسعت تھی۔ جب میں پہلی بار سسرال پہنچا اور ان کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے اتنے زور سے گلے لگایا کہ میری سانس اکھڑ سی گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اتنی جوان اور حسن و جمال سے مالا مال ہوگی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ہمارے وجود ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اس قربت نے میرے اندر ایک عجیب سی برقی لہر دوڑا دی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا کیونکہ اپنے اوپر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں وہ محسوس نہ کر لیں کہ میرے اندر کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ میری ساس، جس کا نام ثنا تھا، مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں حیران تھا، میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی کشادہ ذہن ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے بالکل قریب بٹھایا اور اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بے چین ہو رہا تھا۔ اسی وقت میری بیوی نگار کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ہمارے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے نگار سے کہا، مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ نگار نے بڑے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، امی سے بات کرتے رہو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور وہ باہر چلی گئی۔ میرے سسر دبئی میں رہتے تھے، اس لیے گھر میں عرصے سے صرف ماں بیٹی ہی تھیں۔ نگار کے جانے کے بعد ثنا خاتون نے میرے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان کی آواز میں ایک نرمی اور رازداری تھی۔ تم جانتے ہو بیٹا، آج کے دور میں رشتے بھی نئے رنگ اختیار کرتے ہیں، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نگار کو بھی سب پتہ ہے، ہم دونوں میں بہت گہری سمجھ ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کا داماد ہوں، یہ مناسب نہیں۔ وہ کہا لے کر بولی، کیا مناسب ہے اور کیا نہیں یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی ہم دونوں ایک ہی کمروں میں رہتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی تھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ میں گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں سسرال آیا تھا۔ ہماری راتیں خوشگوار گزر رہی تھیں، لیکن نگار نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ثنا خاتون واقعی بہت خوبصورت اور پرکشش تھیں اور ان کی موجودگی میرے لیے ایک آزمائش بن رہی تھی۔ ادھر نگار چائے لے کر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں میرے بہت قریب ہیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی اعتراض یا حیرت نہیں تھی۔ وہ بھی ہمارے قریب بیٹھ گئی اور بولی، واہ، امی اور داماد میں تو خوب گپ شپ چل رہی ہے۔ میں نے نگار کی طرف دیکھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے نگار؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ نگار نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کوئی نئی بات نہیں ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے لیے حیرت کا باعث تھے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ نگار نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم دونوں کی آپس میں بہت اچھی سمجھ ہے۔ بابا تو برسوں سے دور ہیں، ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور تفہیم سے رہتی آئی ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نیا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے بولی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج جو بھی ہوگا ہم سب کے لیے ایک نئے تجربے کا نام ہوگا۔ تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ یہ میری ماں ہے، آج کے لیے یہ ہماری ایک قریبی دوست ہے۔ میں کانپ رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر ثنا خاتون نے نرم لیکن فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھو بیٹا، زندگی کبھی کبھی ان راستوں پر لے جاتی ہے جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج کی رات ہم سب کے درمیان ایک نئے بندھن کی شروعات ہوگی، تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ نگار نے چائے کے ساتھ ایک گولی میری طرف بڑھائی، یہ لو، پی لو، یہ تمہیں سکون دے گی، تم زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ثنا خاتون نے کہا، یہ محض ایک سپلیمنٹ ہے جو تھکاوٹ دور کرتی ہے، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ ایک عجیب سی کشمکش میرے اندر جاری تھی، ایک طرف ڈر تھا، دوسری طرف ایک مبہم قسم کی تجسس اور رغبت بھی تھی۔ میں نے وہ گولی پی لی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں ایک نئی توانائی دوڑ رہی ہے، میرے خیالات دھندلانے لگے ہیں اور میری ہچکچاہٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد ہم تینوں ایک بڑے کمرے میں موجود آرام دہ بستر پر جا بیٹھے۔ ہوا میں خوشبو تھی اور مٹی کے چراغوں کی مدھم روشنی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ نگار نے اپنی ماں سے کہا، امی، آج کا حق آپ کا ہے، میں تو اپنے حصے کی راتیں گزار چکی ہوں۔ ثنا خاتون نے مسکرا کر کہا، میری ہوشیار بیٹی، تمہیں پتہ ہے کہ زندگی میں بانٹنے سے ہی خوشیاں بڑھتی ہیں۔ میں خاموش تھا۔ گولی کے اثرات میرے اعصاب پر چھائے ہوئے تھے۔ میں ایک تماشائی کی طرح محسوس کر رہا تھا جو اپنی ہی زندگی کے ایک غیر متوقع باب میں داخل ہو چکا تھا۔ ثنا خاتون نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کی انگلیوں کی حساسیت نے میرے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔
डरो मत, ये महज एहसासात की एक दुनिया है जिससे तुम नावाकिफ हो। आज हम तुम्हें इससे रोशनास करवाएंगे। उनके करीब आने की खुशबू, उनकी आवाज़ की शीरीनी और माहौल की पुरस्रारियत ने मिलकर मेरे तमाम तराजुदारियों को तहलील कर दिया। मैंने मुज़ाहमत करना छोड़ दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए ख्वाब व हकीकत के दरमियान एक धुंधला सा मंजर था। नरम हाथों के लम्स, सरगोशियों की बारिश और जज्बात की वो तूफ़ानी लहरें जो मुझे अपनी लपेट में ले रही थीं। मैं अपने आप को खोता जा रहा था, एक ऐसे समंदर में जिसकी गहराइयों का मुझे अंदाज़ा नहीं था। कुछ देर बाद निगार भी हमारी दुनिया का हिस्सा बन गई। वो दोनों, माँ और बेटी, एक अजीब हमाहंगी के साथ एहसासात के एक ऐसे जाल बुन रही थीं जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। हंसी, सरगोशियाँ और लम्स के वो लम्हात जो कभी नर्म तो कभी शदीद थे। गोली के असर ने हर चीज़ को एक धुंधली सी खूबसूरत फिल्म की मानंद बना दिया था, जहाँ वक्त की कोई कैद नहीं थी। रात के पिछले पहर सना खातून ने कहा, अब तुम आराम करो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तस्कीन थी, लेकिन इस राहत का कोई मतलब नहीं रहा था। मेरे जिस्म की हर रग, हर आसाब इंतहाई थकावट का शिकार था। मैं उठने के काबिल भी नहीं था। ये महज जिस्मानी थकावट नहीं थी, बल्कि रूह की एक गहरी काहक थी जो मुझे अपनी लपेट में ले चुकी थी। सुबह हुई तो मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस पाया। मेरे जिस्म में ताकत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। सना खातून और निगार ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे जिस्म पर इंतहाई दबाव पड़ा है और मुझे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। एक हफ्ते बाद जब मैं घर वापस आया तो सना खातून का रवैया यकसर बदल चुका था। उनके चेहरे पर वो नरमी और कशिश नहीं थी, बल्कि एक सर्द बेहिसी थी। उन्होंने कहा, तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारी हालत क्या है। तुम अब हमारी बेटी के साथ एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम चाहते हैं कि तुम निगार को तलाक दे दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब तो आपकी मर्जी से हुआ था, आपने मुझे मजबूर किया था। निगार जो खामोश खड़ी थी बोली, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, तुम खुद ही हर बात के लिए राजी थे। अब हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं रहे। मैंने एहतजाज किया, रोए, मिन्नत समाजत की, लेकिन उनके इरादे पत्थर की तरह सख्त थे। चंद ही हफ्तों में कानूनी कागजात तैयार हो गए और मेरी शादी का खात्मा हो गया। निगार मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। आज भी जब रात गहरी होती है तो मैं अक्सर इस तहराने वाली रात को याद करता हूँ। वो लम्स, वो सरगोशियाँ, वो जज्बात की वो आंधी जो मेरे लिए मोहब्बत का नहीं बल्कि एक गहरी चाल का हिस्सा था। मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक औजार था, एक ऐसा खिलौना जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। इस वाक़े ने मुझे एक गहरा सबक दिया। मैंने अहद किया कि कभी किसी ऐसे जाल में नहीं फंसूं जो खूबसूरत चेहरों के पीछे छिपा हो। मैंने तौबा की, न सिर्फ अपने आमाल से बल्कि उन कमज़ोरियों से भी जो मुझे अंधेरे में खो जाने पर मजबूर करती थीं। ज़िंदगी आगे बढ़ी, लेकिन इस रात का साया हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे हर कदम पर संभल कर चलने की याद दिलाता रहा। आखिर में मैंने ये समझ लिया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और बाज़ रिश्ते ऐसे जहर से भरे होते हैं जो हल्के होंठों की मुस्कुराहट में छिपा होता है। मैंने अपनी सलाहियतें अपने काम में लगा दी और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की तामीर शुरू की। लेकिन कभी कभार जब अकेलेपन की रातें गहरी होती हैं तो वो तूफ़ान फिर से जहन के उफ़ुक़ पर उभर आता है, एक ऐसी याद बनकर जो कभी मिटती नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूँ जो रिश्तों की नज़ाकत, जज्बों की पेचीदगी और ज़िंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जिन पर बात करना आसान नहीं। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, सो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शाम थी जब मैं अपने बेटे अरमान को लेकर अपनी दोस्त सना के घर पहुंची। मेरे चेहरे पर फिक्र के बादल थे। मैंने कहा, देखो सना, ये तेरा भांजा है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसे गलत काम से परहेज करो। ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने आज इसे हाथों हाथ पकड़ा है। ये अपने मोबाइल से फिल्में देख देख कर खुद को तस्कीन दे रहा था। सना की आंखों में हैरत थी। मैंने आह भर कर कहा, सना, अगर तेरा बेटा भी ये सब करे तो मैं तुझसे क्या तवक्को रखूं? तू ही इसे समझा। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मैंने अरमान की तरफ देखा। बेटा, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अब तो तुम्हारी खाला भी मना कर रही हैं। अब तो मान जाया करो। सना ने नरमी से कहा, रफ़ीक़ा, तुम ज़रा यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को अकेले में समझाती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ के सामने नहीं कही जा सकती। मुझे यकीन है अरमान मान जाएगा। अगर मैं प्राइवेट में बात करूँगी तो ये नापसंदीदा आदत छोड़ देगा, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। आखिरकार मैं सना के पास अपना बेटा छोड़कर वापस आ गई। मेरे दिल को इत्मीनान था क्योंकि मैं पहले ही जानती थी कि सना अब उसके साथ क्या करने वाली है। दरहकीकत मैंने सना को फ़ोन पर ही कह दिया था, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर तू उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी तो ये हाथ से खेलना छोड़ देगा। रात दिन खुद को तस्कीन देने में मसरूफ़ रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। सना जवान थी, खूबसूरत थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उसका शौहर सऊदी अरब में था, इसलिए उसके दिल में भी तन्हाई की एक गहरी खला थी। मैं पहले अपने बेटे को उसके पास भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो मजबूर हो गई। मैंने सना से कहा था, इसे मुकम्मल तौर पर खेल का सलीका सिखाना और ख़ुद भी अच्छा वक्त गुजारना, इसे अच्छी तरह सिखा देना। इसलिए जब मैं सना के घर गई तो सना ने अरमान को देखते ही भांप लिया कि आज ये इसे छोड़ने वाला नहीं। मैं चली गई। सना ने अरमान को कमरे में बिठाया।
बेटा, तुम ये आदत क्यों डाल बैठे हो? सना ने नरमी से पूछा। अरमान ने शर्माते हुए कहा, खाला, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं जवान हो चुका हूं। सना मुस्कुरा दी। तुम जवान कहाँ हुए? तुम्हारी उम्र तो अभी 14 बरस है, जवानी तो 18 से शुरू होती है। पर बताओ, ये सब तुम करते क्यों हो? अरमान ने आंखें चुराते हुए कहा, मैं इंटरनेट पर मुख्तलिफ फिल्में देखता हूँ और उन्हें देखकर थोड़ा बहुत खुद ही कुछ कर लेता हूँ, आदत पड़ गई है। सना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर किसी लड़की के साथ ये रिश्ता क्यों नहीं बनाते? अरमान ने जवाब दिया, अगर कोई लड़की मुझे इस खेल में शामिल होने को राजी कर ले, मेरे साथ वक्त गुजारे, तो मैं ये आदत छोड़ दूंगा। सना ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार दूं, तो क्या तुम ये सब छोड़ दोगे? अरमान की आंखों में चमक आ गई। उसने सना का हाथ पकड़ लिया। हाँ खाला, बिल्कुल, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बस आप मुझे राजी कर दें। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, आओ अंदर चलते हैं। दोनों कमरे के अंदर चले गए। सना ने अरमान को गौर से देखा। वो वाकई काफ़ी जवान हो चुका था, उसकी जवानी उभर रही थी। सना ने सोचा, ये वाकई खेल के काबिल है, शायद मेरे शौहर से भी बढ़कर। उसके दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वो समझ गई कि आज का दिन खास होने वाला है। थोड़ी देर बाद सना ने सरगोशी में कहा, अरमान, जो मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, समझे? दोनों पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। अरमान ने बेचैनी से अपना हाथ बढ़ाया। पहला हल्का सा राब्ता हुआ और सना के जिस्म में एक तेजी सी दौड़ गई। वो अरसे बाद किसी गुर्बत के एहसास से गुजर रही थी। उसके शौहर की उम्र 30 से ज़्यादा थी और उनका रिश्ता भी वक्त के साथ मामूल का सा हो गया था। सना ने हल्की सी आह भरते हुए कहा, अरमान, सब्र करो, इतनी जल्दी में कौन भाग रहा है? लेकिन अरमान के जज्बात इंतहा को छू रहे थे। वो तेजी के साथ आगे बढ़ा। सना को तकलीफ हुई। उसने अरमान को थोड़ा सा रोका। अरमान, ये तरफ दुरुस्त नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ वीडियोस में तो दूसरी तरफ से ही खेलते देखते होगे ना, वहीं से कोशिश करो। जब सना ने दुरुस्त रास्ता बताया तो अरमान की समझ में आ गया। वो तो सिर्फ लड़कों की संगत में ऐसी फिल्में देखता था, इसलिए उसे दुरुस्त इल्म नहीं था। अब जब उसने दुरुस्त तरीका इख्तियार किया तो सना के चेहरे पर तस्कीन के आसार नमूदार होने लगे। उसे एक गहरी और देरीना तिश्नती बुझती महसूस हो रही थी। सना ने पूछा, अरमान, तुम्हें ये तरफ पसंद नहीं? तुम पहले यहाँ से नहीं खेलते थे? अरमान ने मासूमियत से कहा, मुझे तो बस इसी का पता था खाला, मैंने तो कभी किसी लड़की के साथ नहीं खेला। कुछ देर बाद अरमान थक कर रुक गया। सना भी एक अजीब सी सरशारी और सुकून महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के पास खामोशी से लेटे रहे। सना ने आहिस्ता से कहा, अरमान, ये बात अपनी अम्मी को हरगिज मत बताना कि तुमने खाला के साथ क्या खेला। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, मैं भी यही कहने वाला था। सना ने कहा, जब भी तुम्हें ज़रूरत महसूस हो तुम मुझसे राब्ता कर सकते हो। उसने अरमान को अपना निजी नंबर दे दिया। इस दिन के बाद अरमान और सना का ताल्लुक एक नई जहत में बदल गया। वो अक्सर मिलते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। अरमान की सेहत और मिजाज में वाज़ेह बेहतरी आई। वो पहले की तरह मुरझाया हुआ और बेचैन नहीं रहता था। सना और मैं दोनों इस तब्दीली पर खुश थीं। अरमान अब एक हकीकी जज्बाती ताल्लुक में सुकून पाता था और सना इस रिश्ते में एक मौल्लिमा, एक रहनुमा और एक दोस्त की तरह उसकी ज़रूरियात पूरी करती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बन गए थे। लेकिन ज़िंदगी का धारा कभी एक सा नहीं रहता। कुछ अरसे बाद सना के शौहर सऊदी अरब से वापस आ गए। सना अपनी हकीकी ज़िंदगी में वापस लौट गई। अब वो अरमान से नहीं मिलती थी। अरमान कभी कभार उसे पैगाम भेज देता, लेकिन सना ने एक आखिरी मुलाकात में उसे वाज़िह तौर पर समझा दिया, अरमान बेटा, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मेरा शौहर वापस आ चुका है और ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तुम भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। अरमान ने बड़े होकर समझ लिया था कि ज़िंदगी के बाज़ रिश्ते वक्ती होते हैं, बाज़ सफ़र मुख्तसर। इस तजुर्बे ने उसे बचपन से निकलकर जवानी में दाखिल होने में मदद दी थी। उसने अपनी तवज्जो तालीम और मुस्तकबिल पर मरकूज़ कर दी। सना ने भी अपनी घरेलू ज़िंदगी में खुद को मसरूफ़ कर लिया। दोनों के बीच वो राज हमेशा के लिए एक राज ही रहा, एक ऐसा बाब जो ज़िंदगी की किताब में लिखा तो गया लेकिन कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। कहानी का इख्तिताम हुआ लेकिन ज़िंदगी जारी रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलते हुए इस याद को दिल की गहराइयों में दबा लिया, जो कभी कभार पुराने दिनों की एक धुंधली सी तस्वीर बनकर जहन के दरीचे पर दस्तक दे जाती थी। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। ये कहानी जज्बों के एक ऐसे समंदर में ले जाएगी जहाँ पुरकशिश तलातुम है, पुरस्रार गहराइयाँ हैं और वो सब राज जो इंसानी दिल छुपाता है। हमारे साथ रहिए, इस दिलचस्प सफ़र में शरीक हुइए और मज़ीद ऐसी ही दिलफरेब कहानियों के लिए हमारा साथ दीजिए। वो रात भी क्या रात थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कायनात खुद किसी अनदेखे ड्रामे का इंतज़ार कर रही हो। मेरा दिल अपनी ही धड़कनों में गुम था। कमरे में सिर्फ उसकी आहट थी और मेरे ख्यालात की हल्की सी सरसराहट। आतिश,
मेरा भतीजा जो 14 बरस का हो चुका था उसी कमरे के दूसरे किनारे पर सोता था जहां मेरी चारपाई बिछी थी। मेरे लिए ये सूरत हाल दिन बदन घुटन का बाइस बनती जा रही थी। मैं 22 बरस की जवान लड़की थी। शादी होने में अभी देर थी, हालांकि मंगनी हो चुकी थी। मेरा भाई जो मेरा सरपरस्त था कहता था कि अगली अच्छी फसल आई तो शादी कर देगा। मैं खूबसूरत भी थी और जवानी के जोबन पर भी, लेकिन भाई के घर में रहने की मजबूरी थी। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक में भाई और भाभी सोती थीं और दूसरे में मैं और आतिश। वो उनका इकलौता बेटा था, मैट्रिक का तालिब इल्म, मासूम सी शक्ल लिए। मगर इस रात वो मासूमियत मेरे लिए एक आजमाइश बन चुकी थी। मेरे अंदर कुछ कोहराम मचा हुआ था, एक ऐसी बेचैनी जो मुझे बता रही थी कि मैं आज कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं अपने ऊपर काबू खोती जा रही थी। आतिश को देखती तो मेरी सांसों में एक अजीब सी बेकरारी दौड़ जाती। वो वाकई खूबसूरत लड़का था, उसकी मासूम आंखें, उसका नाजुक जिस्म। मैं सोचती, कहूँ तो क्या कहूँ? अगर उसने इनकार कर दिया, अगर किसी को पता चल गया, मेरी इज्जत, मेरा रहना सब मुश्किल हो जाता। ये ख्यालात मुझे खाए जा रहे थे। आखिरकार मैं उठी और उसके पलंग के करीब जा खड़ी हुई। वो गहरी नींद में था। मैंने हल्के से उसका हाथ छुआ। वो चौंक कर जाग गया। चची जान, क्या बात है? उसकी आवाज में नींद थी। कुछ नहीं आतिश, बस तुमने कभी कोई फिल्म देखी है? मैंने अपनी आवाज को नर्म और पुरकशिश बनाने की कोशिश की। फिल्म? किस किस्म की फिल्म? वो चौंका। ऐसी फिल्म जो जिंदगी के हसीन पहलू दिखाती है, मोहब्बत के, जज्बों के, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपना मोबाइल फोन उठा लिया। मैंने एक फिल्म चलाई। शुरू में तो मामूली मनाजिर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का रुख बदलने लगा। मैंने आतिश की तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आंखें फाड़े फिल्म की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। चची, ये, उसने उलझन से कहा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा? मैं करीब हुई। मेरा हाथ इत्तेफाक से उसके कंधे पर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे लगता है मैं सो जाऊं, उसने आंखें चुराते हुए कहा। मैंने फिल्म बंद नहीं की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ चुकी थी कि इस पर भी असर हो रहा है। वो सोने का बहाना कर रहा था, मगर उसकी बेचैनी आंखें सब कुछ कह रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी फिल्म लगा दी। इस बार फिल्म और भी सरीह थी। आतिश दोबारा बेदार हो गया। वो खामोशी से देखने लगा। मैंने महसूस किया अब वो मुझसे करीब हो रहा है। उसका हाथ मेरे हाथ के करीब आया। दोनों हाथों के दरमियान एक छोटा सा फासला रह गया था, जो बिजली की तरह कड़क रहा था। आतिश, मैंने पुरसोज आवाज में कहा। जी चची जान, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। उसका ये इकरार मेरे लिए एक जोश बनकर उबल पड़ा। मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आतिश, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक ऐसी लर्जिश थी जो बेख्तियार थी। तुम समझते हो ना, कभी कभी दिल बेकाबू हो जाता है, चाहे रिश्ते कुछ भी हों। वो खामोश था। उसकी सांसों की आवाज तेज थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ अपनी मुट्ठी में ले लिया। उसके हाथ का गरम मसाना मेरे वजूद में आग लगा गया। पर अगर किसी को पता चल गया, मैंने बेचैनी से कहा, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसकी इस जुर्रत को सराहूं। कोई नहीं जानेगा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। हम सिर्फ बातों में मसरूफ रहेंगे। लेकिन बातों से आगे का सफर कौन रोक सकता है? हमारी गुर्बत बढ़ती गई। पहले हाथों का मिलना था, फिर दोनों के दरमियान फासला खत्म होने लगा। मैंने उसके नर्म बालों को हाथ लगाया। वो मेरे करीब होता गया, जैसे कोई परिंदा अपने आशियाने की तरफ। मेरी सारी अक्ल, सारी समझदारी उस एक लम्हे की नज़्र हो गई। मैंने अपने आप को खो दिया। और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर करते हुए भी मेरा जिस्म कांप उठता था। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी जवानी में एक जोश था, एक बेताबी। मैं उसके हाथों में मोम की तरह ढलती चली गई। हमारी सांसों की आवाज एक दूसरे में गटमट होने लगी। चांदनी ने हमारे जिस्मों पर एक चांदी का पर्दा डाल रखा था, जो हमारे हर अमल को एक ख्वाबनाक हुस्न दे रहा था। तुम खौफज़दा तो नहीं? मैंने उसके कान में सरगोशी की। आपके साथ?
कभी नहीं, उसने कहा, और उसके अल्फाज में एक ऐसी मजबूती थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। फिर वक्त ने पलटा खाया। वो मासूम बच्चा जो कल तक किताबों में गुम रहता था, आज एक ऐसे खेल में मसरूफ था जिसके बारे में उसका इल्म सिर्फ फिल्मों तक महदूद था। मैंने उसकी रहनुमाई की। मैंने उसे बताया कि कैसे आहिस्ता रहना है, कैसे नरमी बरतनी है। वो मेरी हर हिदायत को गौर से सुनता और फिर अमल करता। कभी वो जोश में आ जाता तो मैं उसे रोकती, कभी वो हिचकिचाता तो मैं उसे आगे बढ़ाती। ये एक नया रक्स था जिसके दोनों रक्सी अभी सीख ही रहे थे। एक लम्हा ऐसा आया जब उसने थक कर सांस लेना चाहा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। थक गए? हाँ, मगर ये हसीन था, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा तवानाई महसूस की। अब वो ज्यादा पुरहतमाद था। उसने अपने तौर पर कोशिश शुरू की। मैंने महसूस किया कि अब वो अपनी राह खुद बना रहा है। मेरी रहनुमाई की जरूरत नहीं रही। ये एहसास मुझे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस लम्हे को महसूस किया। ये वो लम्हा था जिसकी तलाश मेरे अंदर कई रातों से चल रही थी। ये वो जज्बाती तस्कीन थी जिससे मेरा वजूद तरस रहा था। अचानक दरवाजे की खटखटाहट ने हमें हकीकत में वापस ले आया। हम फौरन अलग हो गए। मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़र हमारे बिखरे हुए कपड़ों पर, हमारे सुर्ख चेहरों पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। ये क्या बेहूदगी है? उसकी आवाज़ गरजी। आतिश घबरा कर एक तरफ हट गया। मैं बेहिस्सू हरकत खड़ी रही, शर्म के मारे ज़मीन में गड़ना चाहती थी। भाई, ये... मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। खामोश, उसने गुर्राया। तुम दोनों ने इस घर की इज्जत खाक में मिला दी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आतिश को सख्त डांट पड़ी। मुझे घर के एक कोने में बंद कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन बाद मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दी गई, एक ऐसे शख्स से जिसे मैं जानती तक न थी। शादी वाले दिन मैंने आतिश को दूर खड़े देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी, पर हम एक दूसरे से दूर थे, हमेशा के लिए। कोई अलविदा नहीं, कोई आखिरी नजर नहीं, बस खामोशी थी जो हमारे दरमियान एक पहाड़ बन गई। मैं अपने शौहर के साथ नए घर आ गई। जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। पर रातों को जब मैं तन्हा होती तो वो यादों के साए मेरे साथ खेलने लगते। वो चांदनी रात, वो गर्म सांसों की याद, वो पहला लम्स, ये सब मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा थे। कभी कभी मैं सोचती, क्या आतिश मुझे याद करता है? क्या वो उसे एक रात को भूल पाया है, या फिर वो भी मेरे ही तरह किसी चांदनी रात में गुम हो जाता है? मगर मैं जानती थी कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उसकी कोई कब्र है, ना कोई निशान, बस एक खामोशी है जो हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के दरमियान हाइल है। जिंदगी आगे बढ़ती गई, साल गुजरते गए, मगर दिल के किसी गोशे में वो 14 साला लड़का अपनी मासूम आंखों और बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ हमेशा जिंदा रहा। यही है जिंदगी का अलमिया। कुछ लम्हे हमारे साथ रहकर हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाते हैं, चाहे हम कितने ही दूर क्यों न चले जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और जज्बाती कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे मौजूद बटन पर क्लिक करें और घंटी का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो से फ़ौरन आगाह हो सकें। आपका शुक्रिया। आप सबको दिल से सलाम। आज की कहानी एक ऐसे जज्बाती और नाजुक मोड़ की दास्तान है जो जिंदगी की किसी भी रास्ते पर आपका इंतजार कर सकती है। ये कहानी सिर्फ एक लम्हे के फैसले के बारे में नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाले हर लम्हे के बारे में है। अगर आप ऐसी ही जज्बाती और दिलचस्प कहानियां पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। हुआ कुछ यूं कि एक बार एक 16 साल की लड़की थी, ज़ैनब। वो मैट्रिक की तालबा थी और उसे रियाजी के मज़ामीन में खासी दुश्वारी होती थी। इस मसले के हल के लिए उसके वालिदैन ने घर पर ही एक ट्यूटर रख लिया था। उनका नाम वक़ार था। वक़ार साहब तकरीबन 35 साल के जवान उस्ताद थे जो अपने पढ़ाने के अंदाज की वजह से मोहल्ले में काफ़ी मकबूल थे। वो हर रोज़ शाम को ज़ैनब को पढ़ाने आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ैनब के वालिदैन किसी रिश्तेदार की शादी में शरीक होने शहर से बाहर चले गए। जाने से पहले उन्होंने ज़ैनब से कहा, बेटा आज वक़ार साहब को फ़ोन कर देना कि आज छुट्टी है, पढ़ाई नहीं होगी। मगर ज़ैनब मसरूफियत में भूल गई। शाम हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो वक़ार साहब खड़े थे, किताबें हाथ में लिए। ज़ैनब घबरा गई। उस्ताद साहब, आज तो अम्मी अबू घर पर नहीं है, आप चले जाएं, आज पढ़ाई नहीं होगी। वक़ार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे कोई बात नहीं ज़ैनब, जब आ गया हूँ तुम्हें एक अहम मसला समझा कर चला जाता हूँ, तुम्हारी तैयारी में फ़र्क पड़ेगा। ये कहकर वो बगैर किसी मज़ीद ज़िद के घर के अंदर दाखिल हो गए। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी घबराहट सी पैदा हुई, मगर वो कुछ कह ना सकी। दोनों ज़ैनब के कमरे में पढ़ाई की मेज़ पर बैठ गए। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वक़ार साहब एक मसला समझा रहे थे और ज़ैनब गौर से सुन रही थी। फिर एक लम्हे में वक़ार साहब ने मसला समझाते हुए ज़ैनब के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ज़ैनब को एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट गुजर गया हो। उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उस्ताद साहब, उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। वक़ार साहब ने उसका हाथ पकड़े रखा। उनकी नज़र में वो मासूमियत नहीं रही थी जो आम तौर पर होती थी। ज़ैनब, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारी आंखों में चमक है। उनकी आवाज़ में एक नई गहरी सरगर्मी थी। ज़ैनब अपना हाथ खींचना चाहती थी, मगर उसका जिस्म सुन हो गया था। खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात ने उसे मुंजमद कर दिया था। बराए करम ये मत करें, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। मगर वक़ार साहब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपनी कुर्सी करीब कर ली। डरो मत, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। तुम समझती हो ना, एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कितना गहरा रिश्ता होता है। ये रिश्ता तो एतमाद से बनता है। ज़ैनब की सांसें तेज़ हो गईं। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ गईं, जो सिर्फ चंद फुट के फासले पर था, मगर वहाँ तक पहुँचना उसे एक नाकाबिले अबूर सफ़र लग रहा था। वक़ार साहब ने धीरे से अपना हाथ उठाया और ज़ैनब के रुखसार को छुआ। उसकी जिल्द ने एक पुरस्रार झुरझुरी महसूस की। तुमने कभी सोचा है ज़ैनब, हम दोनों के दरमियान क्या हो सकता है? ये चार दीवारी हमारे राजों की अमीन बन सकती है। नहीं, ज़ैनब ने अचानक अपनी आवाज़ वापस पाई। ये गलत है, मैं आपकी तालिबा हूँ और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक नया सबक सिखाना चाहता हूँ, वक़ार साहब ने कहा। उनकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो ज़ैनब को डरा रही थी। एक ऐसा सबक जो किताबों में नहीं मिलता। ज़ैनब ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की। मुझे नहीं सीखना, मैं अम्मी अबू को बता दूंगी। ये सुनते ही वक़ार साहब का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया। बता दोगे और वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? एक बिल्कुल नौजवान लड़की की बात पर जो शायद पढ़ाई के बोझ से परेशान है, या फिर एक मारूफ काबिल एहतराम उस्ताद की बात पर? ये अल्फाज ज़ैनब के दिल पर पत्थर की तरह गिरे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथों से चेहरा ढांप लिया। उसे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। देखते ही देखते वक़ार साहब का लहजा दोबारा नर्म हो गया। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस हम दोनों एक खामोश मुआहदा कर सकते हैं। आज जो भी होगा इस कमरे की चार दीवारी में ही रहेगा। बाहर हम वहीं होंगे, उस्ताद और शागिर्द। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ज़ैनब ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसकी निगाहें वक़ार साहब के चेहरे पर जमी हुई थीं, जो अब एक पुरस्रार कशिश का मरकज़ लग रही थीं। खौफ के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी तजस्सुस की लहर भी दौड़ गई। ये वो सूरत हाल थी जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। फिल्मों में देखे गए मनाजिर उसके जहन में गर्दिश करने लगे। क्या क्या मुआहदा? उसने बालाखिर पूछ ही लिया। वक़ार साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला। कभी कभी ज़िंदगी के कुछ असबाक को समझने के लिए तस्वीरों की मदद लेनी पड़ती है। उन्होंने फ़ोन की स्क्रीन ज़ैनब की तरफ बढ़ा दी। स्क्रीन पर कुछ ऐसे मनाजिर थे जो ज़ैनब के लिए बिल्कुल नए थे। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने नज़रें फेर लीं। ये मैं नहीं देख सकती। देखो ज़ैनब, ये महज एक कहानी है, एक फ़न। हम इसे हकीकत नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं, एक मासूम खेल। वक़ार साहब की आवाज़ में एक पुरकशिश धुन थी जो ज़ैनब के इरादों को कमज़ोर कर रही थी। वक़ार साहब ने उठकर कमरे का दरवाज़ा चेक किया कि वो बंद है, फिर वापस आकर ज़ैनब के करीब बैठ गए। उन्होंने दोबारा उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार ज़ैनब ने मुज़ाहमत नहीं की। उसका जहन एक अजीब मुखम्मसे में था। एक तरफ उसकी मासूमियत खौफज़दा थी, तो दूसरी तरफ एक नई गैर दरियाफ्त शुदा दुनिया का तजस्सुस उसे अपनी तरफ खींच रहा था। बस एक छोटा सा खेल, वक़ार साहब ने फुसफुसाया। उनकी सांस ज़ैनब के गाल को छू रही थी। फिर वो लम्हा आया। वक़ार साहब ने आहिस्ता से ज़ैनब को अपनी तरफ खींचा। इब्तदाई मुज़ाहमत के बाद ज़ैनब के जिस्म में तनाव कम होने लगा। उसने अपनी पलकें झुका लीं। दोनों के दरमियान जो हुआ वो अल्फाज में बयान से बाहर था। हर हरकत, हर सांस, हर खामोश इशारा एक नई उलझी हुई कहानी सुना रहा था। वक़ार साहब ने उसे हिदायत दी जो उसने सुनी और जिन पर उसने अमल किया। वो सब उसके अपने वजूद के लिए भी एक हैरत का बाइस था। कुछ देर बाद वक़ार साहब ने अचानक रुककर गहरी सांस ली। उनका चेहरा थकावट से धुआं धुआं था। बस, अब बस। ज़ैनब, जो अभी तक उस अजीब व गरीब जज्बाती तूफान से बाहर नहीं आई थी, हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। खौफ, शर्म, तजस्सुस और एक अजीब सी तस्कीन का एक मिश्रण। वक़ार साहब उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े दुरुस्त किए।
अब वो वही वक़ार साहब लग रहे थे जो रियाजी के मसले समझाते थे। सिर्फ उनकी आंखों में एक गहरी बेचैन चमक बाकी थी। ज़ैनब, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, आज जो कुछ हुआ वो हमारे दरमियान एक राज है, हमेशा के लिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न तुम्हारे वालिदैन को न किसी और को, समझी? ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अच्छा, वक़ार साहब ने कहा। उन्होंने अपनी किताबें उठाईं। दरवाजे तक जाते हुए वो रुके। तुम ठीक हो ना? ज़ैनब ने एक बार फिर सर हिलाया। वक़ार साहब चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने ज़ैनब को एक झटके से हिलाकर रख दिया। वो खाली कमरे में अकेली खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो गुजरे हुए लम्हात के बोझ से लद गई लगती थी। उसने अपने हाथों को देखा जो अब भी कांप रहे थे। उसके रुखसारों पर आंसुओं की एक गर्म लकीर बह निकली। ये आंसू किस लिए के? शर्म के, खौफ के, या फिर उस तजस्सुस के जो अब भी उसके अंदर सुलग रहा था? अगले दिन वक़ार साहब मामूल के वक्त पर ही पढ़ाने आए। उनका रवैया बिल्कुल आम था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ैनब पहले तो बहुत घबराई हुई थी, मगर फिर उसने भी मामूल की बातचीत शुरू कर दी। मगर अब हर लफ्ज़, हर नज़र, हर खामोशी के पीछे एक नया मानी छिपा हुआ था। कई दिन गुजर गए। वक़ार साहब के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अच्छे उस्ताद की तरह पढ़ाते रहे, मगर अब वो ज़ैनब को कभी कभार उस खास किस्म की मुस्कान देते या फिर बहाने से उसके हाथ को छू लेते। हर ऐसे लम्हे में ज़ैनब का दिल धड़कना बंद सा हो जाता। वो अपने जज्बात की इस कश्मकश में फंस चुकी थी। एक तरफ तो वो उस राज से डरती थी जो उन दोनों ने बांटा था, तो दूसरी तरफ उसके अंदर एक अजीब सी तवक्कुआत भी जन्म ले रही थी। फिर एक दिन जब ज़ैनब के वालिदैन फिर कहीं बाहर गए हुए थे, वक़ार साहब ने फिर वही पुराना राग छेड़ दिया। ज़ैनब, आज हम वो सबक दोहराते हैं जो तुम्हें पिछली बार पसंद आया था। इस बार ज़ैनब की मुज़ाहमत कम थी। उसके अंदर का तजस्सुस उसके खौफ पर गालिब आ चुका था। मगर जो कुछ हुआ वो पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत, कहीं ज़्यादा पेचीदा था। वक़ार साहब अब इतने मोहतात नहीं थे। उनकी हरकतें ज़्यादा जुर्रतमंदाना थी। ज़ैनब ने अपने आप को एक ऐसी कश्ती पर पाया जो तेज़ लहरों की तरफ बढ़ रही थी और उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। मगर इस बार जब सब कुछ खत्म हुआ तो ज़ैनब के अंदर सिर्फ खालीपन था। शर्म और पछतावा उसके वजूद को खोखला कर गए। उसने महसूस किया जैसे उसकी मासूमियत का आखिरी टुकड़ा भी उससे छिन गया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी तारीख खामोशी थी। वक़ार साहब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा, तुमने देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम दोनों ने एक छोटा सा राज बांटा है, बस। मगर ज़ैनब के लिए ये कोई छोटा राज नहीं रहा था। ये एक भारी बोझ बन चुका था जो उसके हर सांस के साथ उस पर छाया हुआ था। वो स्कूल में दूसरी लड़कियों को हंसते खेलते देखती तो उसे अपने आप पर तरस आता। उसकी नजरें हमेशा जमीन से चिमटी रहती, गोया वो अपने ही वजूद से शर्मसार हो। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जमा की। जब वक़ार साहब पढ़ाने आए तो ज़ैनब ने उनके सामने खड़े होकर कहा, उस्ताद साहब, मुझे आपसे पढ़ना नहीं है। आप बराए मेहरबानी आज के बाद ना आए। वक़ार साहब हैरान रह गए। ज़ैनब, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं, ज़ैनब ने अपनी आवाज़ में पहली बार मजबूती महसूस की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी। वक़ार साहब का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने दबी आवाज़ में कहा, ज़ैनब, हमारे दरमियान जो हुआ उसके बारे में सोचो। अगर मैं नहीं आऊँगा तो लोग सवाल उठाएंगे, तुम्हारे वालिदैन को शक होगा। ये धमकी थी, साफ और वाज़ेह। मगर इस बार ज़ैनब के अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। उसने अपनी आंखें वक़ार साहब की आंखों में गाड़ दी। अगर आप दोबारा यहाँ आए तो मैं अम्मी अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हर बात मैं बता दूंगी कि आप किस तरह उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं बता दूंगी कि आप किस तरह मुझे डराते हैं। वक़ार साहब की सांसें रुक गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ज़ैनब की आंखों में ऐसी जुर्रत देख रहे थे जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, और हाँ, आप सही कह रहे हैं। शायद वो मुझ पर यकीन ना करें, मगर फिर भी उनके जहन में शक का बीज बो दिया जाएगा। मोहल्ले में आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। क्या आप ये सब रिस्क लेना चाहेंगे? ये अल्फाज वक़ार साहब के लिए एक ठंडे पानी का गुस्ल साबित हुए। उन्होंने महसूस किया कि ये मासूम सा परिंदा पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ चुका है। तुम समझती हो कि तुम मुझे धमकी दे सकती हो? उन्होंने गुस्से में कहा, मगर उनकी आवाज़ में वो पुराना एतमाद नहीं था। ये धमकी नहीं उस्ताद साहब, ये एक वार्निंग है। ज़ैनब ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। आप चले जाइए और कभी वापस ना आए। वक़ार साहब कुछ देर ज़ैनब की तरफ देखते रहे, गोया उसके चेहरे पर कोई जवाब ढूंढ रहे हों। फिर बगैर कुछ कहे वो मुड़े और दरवाजे की तरफ चल पड़े। उनके कदमों में वो रवानी नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। दरवाज़ा बंद हुआ। ज़ैनब अकेली खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आज की दिलचस्प कहानी एक ऐसे राज के गिर्द घूमती है जो एक मासूम तजस्सुस ने खोला। ये कहानी जज्बों की पेचीदगी, दिल की धड़कन और छुपी हुई ख्वाहिशों के बारे में है। अगर आपको ऐसी पुरासरार और जज्बाती कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम परवीन है और मैं एक अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ।
ये वाक़या तकरीबन 2 साल पहले का है, जब मैं ग्रेजुएशन की तालिबा थी। बचपन से ही मुझे एक अजीब सी आदत थी। मुझे राज देखने, छुपकर कुछ जानने का शौक था। एक बार मैंने अपने वालिदैन को देख लिया था और अम्मी ने मुझे खूब डांटा था, लेकिन मेरी ये आदत फिर भी चली आ रही थी। मेरी बड़ी बहन नायला, जो मुझसे 3 साल बड़ी है, उसकी शादी 6 माह पहले एक जागीरदार घराने में हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो नायला ने मुझे अपने गांव आने की दावत दी। मेरे दिल में एक हल्की सी खटक सी थी, एक तजस्सुस था कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती होगी। मैंने खुशी से दावत कबूल कर ली। गांव पहुंचने पर मुझे हैरत हुई। उनका घर तो कोई आम घर नहीं, एक शानदार हवेली थी जो खेतों के दरमियान बनी हुई थी। नायला ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने कमरे के बराबर वाला कमरा दिखाया, जहां मैं ठहरूंगी। उसके साथ वाले कमरे में उसका देवर यासिर रहता था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने आया हुआ था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गई। अगली सुबह सवेरे ही नायला ने मुझे जगाया और चाय पिलाई। चलो सुबह की सैर को चलें, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैं हैरान थी, शादी से पहले तो वो इस वक्त गहरी नींद में होती थी। खैर, हम दोनों घर से निकल खड़ी हुईं। ताज़ा हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नायला वापस जाने लगी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी और थोड़ी देर घूमी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ निकल गई। अचानक मेरी नज़र एक नलके पर पड़ी, जहां यासिर नहा रहा था। मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पहली बार किसी मर्द को इस तरह देखा था। एक अजीब सी शर्म और तजस्सुस का इम्तजाज था। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर पानी में डुबकी लगा रहा था, फिर बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी ये मंजर देखती रही। जब वो चला गया तो मैं गहरी सांस लेकर वापस चल पड़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचने पर नायला ने नाश्ता तैयार कर रखा था। मैंने देखा कि यासिर भी टेबल पर आ बैठा। वो मेरे बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने शर्म से नजरें झुका लीं। नाश्ते के बाद नायला के शौहर काम से बाहर चले गए और नायला ने यासिर से कहा, तुम परवीन को फार्म हाउस दिखा दो। यासिर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। जरूर, चलो परवीन, तुम्हें हमारा फार्म हाउस दिखाता हूँ। मेरे मुंह से इनकार ना निकल सका। हम पैदल ही चल पड़े। फार्म हाउस कुछ फासले पर था। रास्ते में यासिर ने मुख्तलिफ पौधों, दरख्तों के बारे में बताया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत पुरएतमाद और बातूनी है। उसके बोलने के अंदाज में एक जादू था। हम फार्म हाउस पहुंचे तो उसने मुझे आम के बागात दिखाए, फिर डेयरी फार्म की तरफ ले गया। ये हमारी ऑस्ट्रेलियन गायें हैं, बहुत दूध देती हैं, वो फख्र से बता रहा था। अचानक डेयरी के एक कोने में हलचल मच गई। एक ताकतवर सांड एक गाय के करीब जा पहुंचा था। यासिर ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। देखो, फितरत का खेल शुरू हुआ। मैं समझ गई। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैंने मुंह फेर लिया। चलो यासिर, मुझे वापस जाना है। ऐसी कौन सी बात हो गई परवीन, ये तो फितरत का निज़ाम है। हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ाता है। उसकी आवाज़ में एक लहर थी। मैंने कोई जवाब न दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। वो मेरे साथ साथ चलता रहा। रास्ते घर खामोशी छाई रही, लेकिन हवा में एक खिंचाव था, एक ऐसा तनाव जो बोलने से ज़्यादा वाज़ेह था। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सुबह का वो मंजर और फिर फार्म हाउस का वाकया। मेरी सांस तेज थी। आखिर थकावट के मारे मैं सो गई। शाम को नायला ने मुझे जगाया। मैंने खाना खाया। नायला के शौहर फुरकान भाई भी मौजूद थे। वो बहुत शफीक इंसान लग रहे थे। खाने के बाद नायला और फुरकान भाई अपने कमरे में चले गए। यासिर बाहर कहीं गया हुआ था। मैं अपने कमरे में बेचैन सी थी। नींद गायब थी। मैंने सोचा कि बरामदे में थोड़ी टहल आऊं। चांदनी रात थी, हवा में खुशबू थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बरामदे में चहलकदमी करने लगी। नायला के कमरे की खिड़की के इससे गुजरी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ें आईं। कमरे में मध्यम नीली रोशनी थी। मैंने झांक कर देखा, फुरकान भाई खड़े थे। उन्होंने एक हल्का सा लिबास पहना हुआ था। नायला बेड पर बैठी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। फुरकान भाई ने नायला का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और अपने करीब खींच लिया। दोनों के दरमियान एक गहरा पुरासरार ताल्लुक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे में गुम होकर रह गए हों। मैंने सांस रोक ली। ये वो मंजर था जिसके लिए मेरा तजस्सुस बेचैन था, लेकिन अब जब मैं उसे देख रही थी तो एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैं वहां से हटना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम जमे हुए थे। नायला ने सर झुका लिया था। फुरकान भाई उसके कान के करीब कुछ कह रहे थे। फिर उन्होंने नायला को नरमी से अपनी बाहों में ले लिया। ये एक ऐसा जज्बाती लम्हा था जो बहुत गहरा था, बहुत ज़ाती था। मैंने शर्म महसूस की। मैंने आहिस्ता से कदम पीछे खींचे और अपने कमरे की तरफ लौट आई। कमरे में आकर मैंने गहरी सांस ली। मेरे जहन में यासिर का मंजर, फार्म हाउस का वाकया और फिर अब ये मंजर घूम रहे थे। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल दहक कर रह गया। कौन है? मैंने आवाज़ दी। मैं हूँ यासिर, तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। वो बाहर खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रात इतनी खूबसूरत है, बाहर चलो, छत पर चांद देखते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। हम दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, हवा में खुशबू थी। तुम आज परेशान सी लग रही हो परवीन, उसने नरमी से कहा। मैंने कोई जवाब न दिया। वो मेरे करीब आया। हमारी बाहों का एक हल्का सा राब्ता हुआ। एक झुरझुरी सी दौड़ गई।
तुम्हें मालूम है परवीन, उसने आहिस्ता से कहा, फितरत में सब कुछ कुदरती है। मोहब्बत, चाहत, ये सब जिंदगी के हिस्से हैं, हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी बातों में कशिश थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसके हाथ गर्म थे। तुम बहुत खूबसूरत हो परवीन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सहर था। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो और करीब आया। हमारी सांसें तेज थीं। चांदनी में उसका चेहरा और करीब आया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ मेरे होंठों के करीब थे। फिर अचानक नीचे से आवाज़ आई। नायला की आवाज़ थी। यासिर, तुम कहाँ हो? यासिर ने फ़ौरन पीछे हटते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक माजरतखेज़ मुस्कुराहट थी। मुझे जाना चाहिए। और वो चला गया। मैं छत पर अकेले खड़ी हवा के झोंकों को महसूस करती रही। मेरे होंठों पर उसकी गर्माइश बाकी थी। मेरे दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। अगले कई दिनों तक मैं यासिर से नज़रें चुराती रही। वो मामूल की तरह बात करता, लेकिन हर गुफ्तगू में एक ना कही गई बात छुपी रहती। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने बरामदे में आवाज़ सुनी। मैंने देखा यासिर वहाँ खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया। मैं आहिस्ता से उसके पास गई। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो बोला। हम खामोशी से घर से बाहर निकले और खेतों की तरफ चल पड़े। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो मुझे एक छोटे से तालाब के पास ले गया, जहाँ कवल के फूल खिले थे। ये मेरी पसंदीदा जगह है, उसने कहा। जब मैं उदास होता हूँ यहाँ आ जाता हूँ। मैंने कवल के फूलों को देखा जो चांदनी में नहा रहे थे। ये मंजर पुरासरार और दिलकश था। परवीन, उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे आने से पहले ये जगह सिर्फ एक जगह थी, अब ये एक एहसास बन गई है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैंने आहिस्ता से कहा। ये तुम्हारी वजह से है, उसने जवाब दिया। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियों की गर्माइश ने मेरे बदन में आग लगा दी। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ पहले मेरे पेशानी पर, फिर मेरी आंखों पर, फिर मेरी नाक पर छुए। हर छुअन एक वादा थी, एक उम्मीद थी। फिर वो मेरे होंठों तक पहुंचे। ये चुम्बन नर्म, शफाफ और बहुत पुरजोश था। ये वो पहला मौका था जब मैंने महसूस किया कि दो रूहें एक दूसरे में कैसे जम हो सकती हैं। हमारी सांसें एक दूसरे में गुम हो गईं। हवा में खुशबू तेज हो गई। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो परवीन, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी। हम वहीं कवल के तालाब के किनारे बैठ गए। उसने अपनी बाह मेरे कंधे पर डाल दी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर आसमान में तारे गिनने लगी। उसने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने ख्वाब बताए। मैंने महसूस किया कि हमारी रूहें एक दूसरे से बात कर रही थीं। अचानक दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। हमें एहसास हुआ कि रात बहुत गुजर चुकी है। हमें वापस जाना चाहिए, यासिर ने कहा। हम हाथों में हाथ डाले घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बोल रही थी। घर के करीब पहुंचकर उसने मेरा हाथ दबाया। कल मिलते हैं। अगले दिन से हमारी मुलाकातें मामूल बन गईं। हम हर रात चुप चुप कर मिलते, कवल के तालाब के पास बैठते, बातें करते। हमारा रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। एक रात जब हम तालाब के किनारे बैठे थे, यासिर ने अचानक कहा, परवीन, मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। लेकिन यासिर, तुम जानती हो कि? हाँ जानता हूँ, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। तुम मेरी भाभी की बहन हो, लेकिन मोहब्बत को रिश्तों की हदूद में नहीं बांधा जा सकता। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं अपने घर वालों से कहूँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में अज़्म था। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही खौफ भी था। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैं उन्हें मना लूंगा, उसने एतमाद से कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता परवीन। उस रात हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। हमारी मोहब्बत इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि हर रुकावट को पार कर सकती थी। अगले कुछ दिन हमारी खुशी के दिन थे। हम छुप छुप कर मिलते, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें लाते। एक दिन यासिर ने मुझे कवल का फूल दिया। तुम्हारे लिए मेरे कवल। मैंने फूल सूंघा। उसमें तालाब की खुशबू थी, चांदनी की ताजगी थी और हमारी मोहब्बत की महक थी। फिर वो दिन आया जब मेरी छुट्टियां खत्म होने को थीं। मुझे वापस शहर जाना था। आखिरी रात हम तालाब के किनारे बैठे थे। हम दोनों उदास थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा? यासिर ने पूछा। यासिर की आवाज़ में दर्द था। मैं तुम्हें रोज़ खत लिखूंगी, मैंने वादा किया, और छुट्टियों में दोबारा आऊंगी। तुम वापस ज़रूर आना, उसने कहा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमारी आखिरी मुलाकात पर हमने एक दूसरे को हमेशा याद रखने का वादा किया। जब मैं शहर वापस गई तो मेरे दिल में यासिर की यादें थीं, उसके वादे थे और कवल के तालाब की खुशबू थी। और फिर वक्त गुजरता गया। खतूत आते रहे, हर खत मोहब्बत से भरा होता। यासिर ने लिखा कि वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इंतजार किया। एक दिन उसका खत आया जिसमें उसने लिखा था कि उसके वालिदैन राजी हो गए हैं। मेरी खुशी की कोई हद न रही। आज 2 साल बाद मैं उसी हवेली में बैठी हूँ जहाँ मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ था। यासिर मेरे साथ बैठा है, हमारे हाथों में हाथ डाले हैं। हमारी शादी हो चुकी है। कवल का तालाब आज भी वहीं है और हर रात हम वहाँ जाते हैं, अपनी मोहब्बत की कहानी याद करते हैं।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस सुबह सैर पर ना जाती, अगर मैं खेतों में ना जाती, तो शायद आज ये कहानी ना होती। लेकिन फिर मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाया, मेरी जिंदगी को रोशन किया। और आज जब चांदनी रात में हम कंवल के तालाब के किनारे बैठते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो तारीकी को रोशनी और खामोशी को सबसे मीठा गीत बना देती है। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। कहानियों की इस दिलकश दुनिया में खुशामदीद, जहां हर दास्तान एक नया रंग, एक नया जज्बा और एक नई सोच लेकर आती है। ये कहानी जज्बों की एक ऐसी पुरस्कार घड़ी है जिसकी हर टिक टिक आपको अपने शहर में जकड़ लेगी। अगर आप ऐसी ही पुरकैफ और दिलचस्प कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हर नई कहानी से महफूज हो सकें। फजर की नर्म रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा नाम आरिफ है और मेरी उम्र 21 साल है। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल पर वालदैन और मेरी 2 बहनें रहती थीं। ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ मेरा अपना छोटा सा कमरा था। प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा। नीचे ड्राइंग रूम में मुझे एक गैर मामूली मंजर दिखाई दिया। मेरे वालिद साहब और वालदा एक दूसरे के करीब बैठे थे। दोनों के दरमियान एक पुरसुकून और गहरा ताल्लुक नजर आ रहा था। माँ ने आहिस्ता से कहा, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है हफीज। पहले जो जोश हुआ करता था वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाता है। वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी यही तो है शाजिया। मैं खामोशी से पीछे हटा और किचन से पानी पिया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाते मैं ऊपर अपने कमरे में वापस आ गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने पहली बार माँ बाप को इस तरह करीब देखा था। वालदा आज भी बहुत खूबसूरत थीं। उनकी आवाज़ में एक गहरा प्यार था, मगर साथ ही एक उदासी भी थी जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। दोपहर के करीब माँ मेरे कमरे में आईं। आरिफ, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा। अम्मी, मुझे मालूम नहीं था, शायद थकावट थी, मैंने जवाब दिया। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, वो बोली और कमरे से बाहर चली गईं। मैंने तैयारी की और नीचे आया। मेरी छोटी बहन सना और बड़ी बहन महक टीवी देख रही थीं। महक, जिसे हम प्यार से मम्मू कहते थे, ने मेरे आने पर कहा, भाई आज तुमने तो पूरा दिन ही सोते गुजार दिया, हम तुम्हारा इंतजार करती रहीं। माफ़ करना मम्मू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ थका हुआ था। नाश्ते के बाद माँ ने कहा, आरिफ आप घर पर ही रहें, स्टोर रूम को साफ करने की ज़रूरत है और वहाँ से कुछ सामान बाहर निकालना है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। ये तो एक मौका था माँ के करीब जाने का। स्टोर रूम बहुत पुराना था। हमने एक साथ मिलकर चीज़ें बाहर निकालनी शुरू की। काम करते हुए मैंने माँ को गौर से देखा। वो मेहनत से अपना काम कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट के आसार थे। कभी कभार हमारे हाथ आपस में छू जाते या मैं कोई भारी चीज़ उठाते हुए उनके करीब हो जाता। मैंने महसूस किया कि वो मेरी इस कुर्बत से कुछ न कुछ महसूस कर रही हैं, मगर खामोशी इख्तियार किए हुए थीं। काम के दौरान माँ ने कहा, आरिफ तुम बहुत समझदार हो गए हो, लगता है अब तुम्हारी शादी का वक्त करीब आ रहा है। मैंने जवाब दिया, अम्मी अभी जल्दी क्या है, पहले महक और सना की शादियां होनी चाहिए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। पूरा दिन हमने एक साथ काम किया। शाम होते होते मेरी माँ बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। वो अपने कमरे में चली गईं। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। सुबह के वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक तरफ मेरी माँ की थकावट और उदासी थी, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने जज्बात को समझने की ज़रूरत है। अगले दिन मैंने बाजार से एक छोटा सा कैमरा खरीदा। मेरा मंसूबा था कि मैं उसे वालदेन के कमरे में छुपा कर रख दूं, शायद मैं समझ सकूं कि असल में हो क्या रहा है। ये सोचकर मेरा दिल बहुत धड़का, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये महज तजस्सुस है। 2 दिन बाद मौका मिलते ही मैंने वो कैमरा वालदेन के कमरे में एक अलमारी के पीछे एहतियात से नस्ब कर दिया। मेरा दिल एक अजीब तरह के गुनाह और तजस्सुस के दरमियान झूल रहा था। इस रात मैंने कैमरे से जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। माँ और अब्बा एक दूसरे के साथ बैठे थे। माँ बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, हफीज लगता है वक्त ने हमारी कुर्बतों में भी फासले डाल दिए हैं। अब्बा ने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, शाजिया उम्र के साथ ये सब होता है, तुम अब भी वही खूबसूरत हो, बस हमारी तवज्जोहें दूसरी चीजों पर मरकूज हो गई हैं। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वो बात नहीं थी जो मैं सोच रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे वालिदैन के दरमियान प्यार तो है, मगर वो वक्त और रोजमर्रा की मसरूफियात में कहीं खोसा गया है। मेरा दिल भर आया। मैंने कैमरा बंद कर दिया। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने जो कुछ सोचा था वो बिल्कुल गलत था।
अगले दिन सुबह मैं नीचे आया तो माँ अकेले किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उनकी पुश्त मेरे तरफ थी। मैंने देखा कि उनके कंधों पर थकावट का बोझ साफ नजर आ रहा था। मेरा दिल प्यार से भर गया। मैंने आहिस्ता से पीछे जाकर उन्हें गले लगा लिया। माँ चौंक गई। आरिफ, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस आपको गले लगाना चाहता था। आप बहुत थक गई हैं। माँ ने प्यार से मेरे हाथों पर हाथ रखा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो आरिफ। मैंने कहा, अम्मी, आप और अब्बा के लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। क्या आप दोनों कल रात के खाने पर बाहर चल सकते हैं? मैं घर का इंतजाम कर लूंगा। माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी आ गई। तुम सच कह रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैंने फौरन अपने दोस्त से कुछ रकम उधार ली और शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में वालदैन के लिए एक टेबल बुक करवाया। शाम को मैंने माँ को तैयार होने में मदद की। उन्होंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। मैंने उन्हें देखा और कहा, अम्मी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अब्बा भी तैयार होकर आ गए। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट तक जाने के लिए एक अच्छी कार का बंदोबस्त किया था। जब वो दोनों घर से निकले तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। महक और सना ने पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने हमारी खातिर अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया। आज की रात सिर्फ उनकी है। रात गए जब वालदैन वापस आए तो उनके चेहरों पर एक चमक थी, एक नई रौनक थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज हमें वो तोहफा दिया है जो सालों से हम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, वक्त। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया था। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहटें वापस आ गई थीं। अब्बा घर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे। एक दिन माँ ने मुझे अकेले में बुलाकर कहा, आरिफ, तुमने जो किया इसके लिए शुक्रिया। तुमने हमें याद दिलाया कि मोहब्बत को वक्त और तवज्जो की जरूरत होती है। मैंने कहा, अम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कुछ गलत सोचा था, माफ कर दीजिएगा। माँ ने मेरी पेशानी चूम ली। बेटा, इंसान से गलतियां होती हैं, अहम बात यह है कि वो उनसे सीखे। इस वाक़े के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। मैंने अपनी बहनों के साथ भी एक मजबूत रिश्ता कायम किया। मैंने उन्हें समझाया कि खानदान की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। मैंने एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली और घर के अखराजात में हाथ बटाने लगा। एक रात हम सब खानदान के साथ बैठे फिल्म देख रहे थे। माँ मेरे पास बैठी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आरिफ, तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, जब आप कहेंगे मैं अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे खानदान को समझे, जो हमारी खुशियों में शरीक हो। माँ की आंखों में चमक आ गई। तुम वाकई समझदार हो गए हो बेटा। कुछ महीने गुजर गए। मैंने अपने वालदैन के लिए एक छोटी सी तफरीही सैर का बंदोबस्त किया। वो कुछ दिनों के लिए एक पुरसुकून जगह पर गए। जब वो वापस आए तो दोनों जवान नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ गई थी, जो शायद वक्त के धुंधलकों में कहीं खोसी गई थी। आज जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इस सारे तजर्बे ने मुझे क्या सिखाया। ये कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये कि रिश्तों को पालने के लिए वक्त, सब्र और फहम दरकार होती है। मैंने अपनी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने में मदद की। महक की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और सना ने अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया। और मेरे वालदैन, वो आज भी एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं भी उनके साथ बैठता हूँ और हम सब मिलकर हंसते हैं। मैंने वो कैमरा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसे एक दिन निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल मंजर वो नहीं जो आंखें देखती हैं, बल्कि वो है जो दिल महसूस करता है। मेरी कहानी का इख्तिताम एक नई शुरुआत की मानिंद है। मैं अब भी अपने लिए एक साथी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब वो मिलेगी तो मैं उसे वो सब कुछ दे सकूंगा जो एक रिश्ते को मजबूत बनाता है, इज्जत, मोहब्बत और सबसे बढ़कर वक्त। खानदान एक दरख्त की मानिंद है। अगर इसकी जड़ों को पानी और धूप मिलती रहे तो ये हरा भरा रहता है, और बाज़ औक़ात हमें खुद ही अपने दरख्त की देखभाल करनी पड़ती है ताकि उसकी छांव में हम सब महफूज और खुश रह सकें।